हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तार पर चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देयर इज अ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हियर। Another major economical impact of the British policy in India was a reduce of large number of commercial crops such as tea, coffee, indigo, opiums, cottons, jutes, sugarcane and oilseed. There is a most important impact of British policies in India or reduce a large number of commercial crops such as tea, coffee, indigo, opiums, cotton, jute, sugarcane and oilseed. Different kind of commercial crops were introduced with a different intention. India's opium was used to the balance of trade of Chinese tea with the Britain in the letter of the favor. The market for opium was strictly controlled by British trader, which did not leave a much scope for Indian producer to the reap profit. India has were to forced to produce indigo and sell its own condition as dedicated by the British. Indigo was sent to England and used as a nice agent for the cloth producing in a British town. Indigo was growing under a different system where all the farmer were compelled to be growth its own, the 12th or third part of their land. Unfortunately, cultivation of indigo left the land fertile of some years, and this made farmers reluctant of growth in it. In the tea plantation, ownership there is ownership change to the land quite often. The worker on this plantation work under a lot of hardship. Commercialization of the agriculture further enhanced their speed of transfer of ownership of land and thereby increase the number of landless labor. It is also brought in a large number of merchant, trade and middlemen who further exploited the situation. The peasants now depend on them to sell their produce during the harvest time. Because the peasant now is shifting to a commercially crop, food grain and production went down, so less food stock are left to be found. It was therefore not to be surprising that a peasant is revolted. You will read about it as details in the coming chapter. There was on the enormous drain of wealth from our country to be taken due to the various economic policies. Additional financial burden was placed on the India due to the expenditure on the salary, pension and training of military and civilian staff employed by the British rule India. If this wealth was invested in India, it could be have to help its economy improve to the economic in the country. Let us learn how to economical policy implemented by the British change the social कल्चर एंड इंडियन सोसाइटी। कृषि का व्यवसायीकरण। कहते हैं भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव चाय, कॉफी, इंडिगो, अफीम, कपास और जूट, गन्ना और तिलहन जैसी वाणिज्यिक फसलों के परिचय से पड़ा। यानी देखा जाए तो भारत में ब्रिटिश नीतियों का एक अन्य प्रमुख आर्थिक प्रभाव जो था चाय, कॉफ़ी, नील की खेती, अफीम, कपास, जूट और गन्ना और तिलहन। विभिन्न वाणिज्यिक फसलों कि विभिन्न प्रकार के अलग उद्देश्य से साथ प्रस्तुत किया गया। यानी सारे वाणिज्यिक फसलों का जो है अलग अलग उद्देश्य रखा गया और उसे अलग अलग प्रस्तुत किया गया। भारतीय अफीम को जो है चीनी, चाय व्यापार संतुलन के लिए इस्तेमाल किया गया, जो बाद में ब्रिटेन के पक्ष में हो गया। अफीम का बाजार सख्ती से अंग्रेजी व्यापारियों का नियंत्रित किया गया। यानी अफीम के खेती को जो है
सख्ती के साथ जो है अंग्रेज व्यापारियों द्वारा नियंत्रित किया गया, जिसमें भारतीय उत्पादकों के लिए लाभ की ज़्यादा गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। यानी भारतीय उत्पादकों के लिए जो है लाभ का गुंजाइश नहीं छोड़ी गई और भारतीयों को जो है नील उत्पादन करने और इससे अंग्रेजों के तय शर्तों पर बेचने के लिए मजबूर किया गया। यानी देखा जाए तो नील के उत्पादन के लिए उनको हर तरह से जो है शर्त के रूप में रखी गई। जैसे आपने घटना देखा होगा चंपारण का, जहाँ महात्मा गांधी ने जो है सत्याग्रह करके जो है उनको इस शर्तों को जो है पूरा करने के लिए मजबूर किया था ब्रिटिश को। और ये पहले सत्याग्रह के रूप में जाना जाता है, चंपारण खेरा, ठीक है, बिहार में क्षेत्र पड़ता है। तो ये पहला हमारा सत्याग्रह था जहाँ पर नील की खेती के अंतर्गत हुई थी। कहते नील को जो है इंग्लैंड भेज दिया जाता था और ब्रिटिश कपड़े की रंगाई के रूप में इसको इस्तेमाल किया करते थे। सभी किसानों को नील को जो है अपनी ज़मीन के 20/3 भाग यानी जो है 20 में से तीसरा भाग पर उगाने के लिए मजबूर भी किया गया। और दुर्भाग्य से नील की खेती कुछ वर्षों के लिए भूमि को बंजर बना देती थी। यानी नील की खेती जिस भूमि पे होती थी वो बंजर हो जाती थी। किसान इसे उगाना नहीं चाहते थे और चाय बागानों का स्वामित्व अक्सर बदला जाता था और इन बागानों पर जो है मजदूर कठिनाइयों के अंदर काम किया करते थे। तो देखा जाए इस समय किसानों के बहुत ही दशा जो थी दयनीय थी। कृषि के व्यवसायीकरण और स्वामित्व को हस्ताक्षर की नीति से देश में भूमिहीन मजदूरों की संख्या बढ़ती ही चली गई और इससे एक बड़ी संख्या में सौदागर, व्यापारी और दलालों ने इस स्थिति में जो है किसानों का शोषण किया। किसान अब फसल कटाई के दौरान अपनी खेतों को बचाने के लिए उन पर निर्भर थे, क्योंकि किसानों अब बर्जर की फसल उगाते थे, जिससे खाद्यान्न उत्पादन जो है नीचे चला गया। अंततः कम अनाज से अकाल की स्थिति बन गई। भारत में देखा जाए तो कई अकालों का जो है सामना करना पड़ा और कारण भी यही था कि वो लोग जो है वर्ज्य के पदार्थों के उत्पादन करने लगे और अनाज के उत्पादन में कोई भी जोर नहीं दिया। अब देखिए आने वाला समय में क्या ऐसा कंडीशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज जो है भारत में भी वो कृषि की जा रही है जिससे उनको अधिक पैसा मिलता है और अनाज का उत्पादन बहुत ठप सा हो गया है। देखा जाए तो वही क्राइसिस जो है आने वाला समय में भारत को भी झेलना पड़ सकता है, भारत में भी अकाल हो सकती है। इसके बारे में विस्तार से आप जानने वाले आगे अध्ययन में पढ़ेंगे जो कैसे भारत में जो है अकालों का सामना करना पड़ा। हमारे देश से धन की भारी राशि विभिन्न आर्थिक नीतियों की वजह से ब्रिटिश में भेजी जाती थी। अब सोचिएगा कि भारत का धन राशि विदेश में कैसे जाती थी। भारत में तो रुपये होती थी, तो ब्रिटिश जो है इस पैसों का कैसे इस्तेमाल करती थी। वो लोग भारत में व्यापार करके यहाँ की करेंसी जो है अर्जित करते थे और इस करेंसियों को जो है गोल्ड में कन्वर्ट करके, डायमंड में कन्वर्ट करके वो अपने देश ले जाया करते थे। तो इस तरह जो है यहाँ का धनराशि भारी जो है नीतियों की वजह से ब्रिटिश में भेजी गई और अतिरिक्त जो है वित्तीय बोझ सैन्य और नागरिक कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और प्रशिक्षण पर अंग्रेज द्वारा जो है नियोजित व्यय करने कर जो है कारण भारत पर डाले जाने लग गए। यानी देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि अतिरिक्त वित्तीय बोझ सैन्य और नागरिक कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और प्रशिक्षण पर अंग्रेजों द्वारा नियोजित व्यय करने के कारण भारत पर जो है ये डाले जाने लग गए। यदि इस धन को भारत में निवेश किया जाता तो देश की अर्थव्यवस्था में काफ़ी सुधार आया था, लेकिन भारत में इसको निवेश नहीं किया गया, इसे ब्रिटिश में निवेश किया गया। तो यही बात काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है कि अगर भारत में अगर विदेशी कंपनियां आती है तो क्या वो भारत के लिए सोचेंगे, क्या भारत को अर्थव्यवस्था के लिए कभी सोचेंगे? जनरल सी बात है, वो अपने देश की अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे, न कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सोचेंगे। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई आर्थिक नीतियों ने भारतीय समाज की समाज रचना ही बदल के रख दी।